Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 31 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं रोड टैप स्कीम की। ये बेसिकली लॉन्च किया गया था ताकि जो एक्सपोर्ट्स है ना, उनको काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके, राइट। ये रोड टैप स्कीम बेसिकली क्या ये प्रोवाइड करती है, रिफंड ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज जो कि आपके एक्सपोर्टर्स पे लगाई जाती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। आई रिपीट, ये रोड टैप क्या है, रोड टैप की फुल फॉर्म देख लेते हैं। रेमिशन ऑफ द ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी मैन्युफैक्चर बनाएगा, उस पर जो भी टैक्स लगता है, ड्यूटीज लगती है, राइट, उनको रिफंड करने के लिए स्कीम लॉन्च करी गई थी। एंड अभी रिसेंटली याद रखेंगे, पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अनाउंस किया था द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम फॉर द रोड टैप टू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स थ्रू कुरियर एंड पोस्टल सर्विसेज, राइट। जो रोड टैप स्कीम है ये ऑपरेट कर रही है फॉर द ईयर 23-24 विद अ बजट ऑफ 15,070 करोड़ रुपीज, करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे, एमएसएमईज को ग्रो करने के लिए, एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए एक ई कॉमर्स हैंडबुक को भी अभी लॉन्च किया गया है, राइट। जो एमएसएमईज है उनको हेल्प करेगी कि कैसे ग्रो करना है, क्या क्या मार्केट्स में प्ले होती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी 4 लैंग्वेजेस में लॉन्च की गई है, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ एंड गुजराती में, ठीक। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, डीजीएफटी ने यहाँ पर एक एमओयू साइन किया शिप रॉकेट के साथ। शिप रॉकेट क्या है, ये एक ई कॉमर्स एनेबलर है, करेक्ट। उन्होंने एमओयू साइन किया ताकि जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स रहेंगे फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर, उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या ई कॉमर्स की प्रैक्टिसेस होती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यहीं पर आपकी जो ये ई हैंडबुक की हमने बात करी, ये बहुत काम आएगी इन लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्टेट हैज टॉप्ड अमंग द स्टेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। हम देखते हैं, आप शेयर्स बाय करते हैं, राइट, आप इक्विटी बाय करते हैं अलग अलग कंपनीज की, करब जोमेटो, पेटीएम वगैरह आप इनकी बाय करते हैं, राइट। जैसे फिर आप देखते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, आप इंट्राडे भी करते हैं, आप फ्यूचर्स भी खेलते हैं। तो ये सारे क्या होता है, ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं। और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं बेसिकली, जो कि आपका स्टॉक्स लेके भूल जाते हैं, काफ़ी टाइम तक रखते हैं, जब वो बढ़ जाएगा उसको बेच देते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स आपके एक बंडल में लाए जाते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट किया जाता है, राइट। और एक व्यक्ति यहाँ पे म्यूचुअल फंड को संभालता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने टॉप किया विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स, मतलब कौन सी स्टेट में से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो वो रहेगी महाराष्ट्र। मार्क करेंगे, महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है विद अ ग्रोथ ऑफ 16.9%
एनुअली, एंड 1.48 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड यूजर देखते हैं जो कि आपके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये डाटा एनएसई के द्वारा रिलीज किया गया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। फिर टॉप पर तो आ जाता है महाराष्ट्र, सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है यूपी, और थर्ड पे आ जाता है गुजरात। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड वन नेशन वन पास टू एनेबल सीमलेस ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस इंडिया। देखो फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हो गया, आपका टिम्बर हो गया, ये एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फिर आपका बैम्बू हो गया। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाना है तो हमें परमिशन चाहिए होती है, राइट। अगर आप कोई भी गुड्स लेके जा रहे हैं तो आपके टोल्स पर परमिशन लगेगी आपकी, राइट। जब आप एक दूसरी स्टेट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपकी पुलिस आपकी चेकिंग कर सकती है कि आप क्या प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों इस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, क्योंकि फिर काफ़ी सारी ड्यूटीज़ और टैक्सेस आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को सीमलेस बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अंडर लाने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा एक वन नेशन वन पास को लॉन्च किया गया, जिससे क्या होगा, जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट होगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर लेंगे इसको। इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। ये एक वन नेशन वन पास सिस्टम है, एनटीपीएस। इससे क्या होगा, जो भी आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा और हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उससे काफ़ी बेनिफिट उसको देखने को मिलेगा, करेक्ट। अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो अलग अलग स्टेट में आपकी परमिशंस की रिक्वायर्ड होती हैं, राइट। उस परमिशंस को, उस फ्लो को और ईजी बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे इस ट्रांजिट से आपको, एनटीपीएस से क्या होगा, आपको काफ़ी स्टेट्स में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। एंड जो गुड्स जो आपका प्रोड्यूस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टिम्बर ही है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो इसके लिए जो परमिशन चाहिए होगी, इसके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो यहाँ पे आपका व्यक्ति जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, वो खुद प्रोड्यूस कर पाएगा यूजिंग द एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन, करेक्ट। उनको यहाँ पे मिनिस्ट्रीज की, अथॉरिटीज़ की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो प्रोड्यूस रजिस्टर्ड है तो वो खुद कर पाएगा मोबाइल से ही, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नहीं है तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, पिछली न्यूज़ पे हमने देखा था महाराष्ट्र ने टॉप किया, राइट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो इंडिया की मार्केट कैप है ना, वो $4 ट्रिलियन के मार्क को टच कर चुकी है। 4.32 ट्रिलियन एक्चुअली अब हो चुकी है। एंड इससे इंडिया की जो वैल्यूएशन अगर हम देखें मार्केट कैप्स के हिसाब से, इंडिया 4th पोजीशन पे आ जाता है इन द वर्ल्ड। टॉप पर है यूएसए, फिर है चाइना, उसके बाद आ जाता है जापान, और इंडिया 4th पोजीशन पे है इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप विद $4.32 ट्रिलियन। करेक्ट। एनएसई जो कंपनीज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी कंपनीज लिस्टेड है, उनकी टोटल वैल्यूएशन की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि है $4.32 ट्रिलियन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है, हमने देखा कि वन नेशन वन पास एनटीपीएस ये लॉन्च किया गया ताकि जो ट्रांजिट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अक्रॉस इंडिया डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, उसको ईज में लाया जा सके, उसको ईजी बनाया जा सके। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इनके द्वारा इंटरेस्ट रेट्स रिलीज किए गए फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 24। यहाँ पे कुछ स्कीम्स में रेट बढ़ाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, यहाँ पर 20 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, मतलब 0.2% से बढ़ाया गया, जो कि पहले 8 था, अब 8.2% हो गया है। देन द इंटरेस्ट रेट ऑन 3-year टाइम डिपॉजिट ऑल्सो इंक्रीज बाय 10 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 7%, 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा तो 0.1% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। करेक्ट। एंड फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम, उसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट अगर बात करें सुकन्या समृद्धि सेविंग अकाउंट की, ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम की, ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर लॉन्च की गई थी। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। एंड जो लड़कियों की एजुकेशन है एंड जो मैरिज एक्सपेंसेस है उसको कैटर करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए रहेगा पर फाइनेंशियल ईयर। ये आप एटीसी डिडक्शन भी ले सकते हैं, इससे टैक्स का डिडक्शन। करेक्ट। एंड to be eligible for the scheme, girl child must be a Indian resident and under the age of 10 at the time of account opening. Next आ जाता है न्यू डिजाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड एट द
हॉल्स AERDC इन बेंगलुरु। अभी एक नई टेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की गई है एट द एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कैंपस में रहेगा इन बेंगलोर कर्नाटका। ये जो AERDC थी ये इनिशियली 1960 में इस्टेब्लिश की गई थी एंड इज द ओनली डिजाइन हाउस जो कि डेवलप किया गया है टू टेस्ट द बेड्स फॉर इंजन्स फॉर बोथ वेस्टर्न एंड रशियन ओरिजिन। तो अभी एक नई डिजाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई कहाँ पर, AERDC के हॉल कैंपस में, जो कि कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। हॉल की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, CB अनंता कृष्णन। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, बेंगलोर कर्नाटका में, एंड इसको 1940 में इस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं TEC, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, राइट। इन्होंने लॉन्च किया एक ऑनलाइन वॉलंटरी सर्टिफिकेशन मॉड्यूल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल एंड टेक्नोलॉजी अप्रूवल अंडर द वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके एंड आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट किया जा सके। करेक्ट, आई रिपीट, TEC क्या है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर। इन्होंने लॉन्च किया एक वॉलंटरी ऑनलाइन वॉलंटरी सर्टिफिकेशन मॉड्यूल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, करेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बेसिकली मतलब क्या है कि अगर हमें इंडिया में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो हमें पहले बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी, बहुत सारा पेपर वर्क होता था। उसको एलिमिनेट करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो कि आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको पेपर वर्क की टेंशन नहीं लेनी, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में ध्यान दो। करेक्ट, तो ये जो TEC है ये एक टेक्निकल आर्म रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, एंड ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल इनके द्वारा लॉन्च किया गया जो कि डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये जो मॉड्यूल है ये स्ट्रीमलाइन कर देगा टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस को, एंड जो भी स्टार्टअप्स हैं, MSMEs है, जो उनको ग्रो करना है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे पेपर वर्क का ज़्यादा ध्यान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में ध्यान रख सके, इसीलिए यहाँ पर ये मॉड्यूल्स को लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, RBI ने एक्सटेंड कर दिया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को टिल विच ईयर। PIDF स्कीम को पहले 3 साल के लिए लॉन्च किया गया था, उसको एक्सटेंड करके अब 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। PIDF होता क्या है, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, करेक्ट, और 31 दिसंबर 2025 तक इसको एनहांस कर दिया है। PIDF स्कीम की अगर हम बात करें, याद रखेंगे ये जो PIDF स्कीम है ना, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI इन 2021 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 साल। द एम इसका क्या था, टू एंकरेज द डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज योर QR कोड्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स को, करेक्ट, जिससे आप स्कैन करके इजीली आप पेमेंट कर सकते हैं। इनका एम था कि Tier 3 से Tier 6 सेंटर्स में, जैसे स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में ग्रो किया जाए इनको। और अब आप देखते हैं कि कहीं पे भी आप चले जाइए ऑल ओवर इंडिया, आपको QR कोड देखता है जिससे आप इजीली अपने फ़ोन से पेमेंट कर पाएंगे। फिर ये जो PIDF स्कीम है ना, has been enhanced to increase the scope of the beneficiaries and acceptance infrastructure। इसके अंदर हम देखेंगे बेनिफिशरीज आ जाते हैं ऑफ PM विश्वकर्मा स्कीम, ऑफ द मर्चेंट्स अंडर द PIDF स्कीम। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो साउंड बॉक्स डिवाइसेज हैं, जब आप देखते हैं कि QR कोड होता था पहले, अब आप देख रहे हैं QR कोड के साथ एक साउंड बॉक्स डिवाइस भी आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपकी आवाज़ आती है कि हाँ पेमेंट हो गई है। तो ये जो साउंड बॉक्स डिवाइसेज हैं, आधार कार्ड एनेबल्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेज हैं, इनकी आप सब्सिडी भी आप ले सकते हैं अंडर दिस स्कीम। इनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अपने बूथ्स पर, अपने शॉप्स पर इसको लगाने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे RBI ने एक्सटेंड कर दिया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को, PIDF को, टिल 31 दिसंबर 2025। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू IRDAI एनुअल रिपोर्ट, इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ड्रॉप्ड टू हाउ मच परसेंट इन 2022-23। तो पहले ये 4.2% थी, करेक्ट, अब ये ड्रॉप होकर कितनी रह गई है, तो याद रखेंगे 4.2% थी 2021-2022 में, और अब ये ड्रॉप होकर जस्ट 4% रह गई है 2022-2023 में। करेक्ट, हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की। वहीं पर याद रखेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.2% से रिड्यूस होके रह गई है 3% इन 2022-23। ठीक है, IRDAI की बात करें तो देवाशीष पांडा यहाँ के चेयरपर्सन रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा हैदराबाद तेलंगाना में IRDAI का, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ गुजरात बोटाड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक एंड महाराष्ट्र के आदर्श महिला नगारी सहकारी बैंक मर्यादित का, इन दोनों का यहाँ पे लाइसेंस अभी कैंसिल कर दिया गया है। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, दोनों बैंक, इनका लाइसेंस अभी कैंसिल कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये वो पहली इंडियन कंपनी बनी जिन्होंने केमिकल प्रोसेसेस को यूज किया है ताकि प्लास्टिक्स को रिसाइकल करके उनको सर्कुलर पॉलीमर्स में डेवलप किया जा सके। आई रिपीट, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो पहली इंडियन कंपनी बनी जिन्होंने केमिकल प्रोसेस का यूज किया ताकि प्लास्टिक्स को रिसाइकल करके केमिकली उनको सर्कुलर पॉलीमर्स में डेवलप किया जा सके। और ये जो सर्कुलर पॉलीमर्स रहेंगे, ये आपका याद रखेंगे, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस सर्टिफिकेट बेस्ड सर्कुलर पॉलीमर्स रहेंगे। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड ही आपके पॉलीमर्स रहेंगे, सर्कुलर पॉलीमर्स, जिसमें आपके इस प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाएगा केमिकली बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये पहली इंडियन कंपनी बन गई है जो कि केमिकली रिसाइकल करेगी प्लास्टिक वेस्ट को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर LIC, इन्होंने अपना स्टेक BHEL में रिड्यूस कर दिया है टू जस्ट 9.67%। पहले 11.701% था और इन्होंने रिड्यूस कर दिया अपना स्टेक टू जस्ट 9.617% थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। LIC ने सेल किया अपना बेल शेयर्स को एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 79.58 रुपीज थ्रू सेकेंडरी मार्केट बिटवीन जून 2019 से दिसंबर 2023 के बीच में। एंड बेल की बात करें, ये एक महारत्ना CPSE है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे यहाँ पे कोपू सदाशिव मूर्ति। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली एंड इसको 1964 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 7th फेरी क्राफ्ट मंजूला पे, राइट। ये आपका यार्ड 786 रहेगा, करेक्ट, मंजूला। इसको अभी डिलीवर किया गया टू इंडियन नेवी और इसको डेवलप किया गया है द शालीमार वर्क्स के द्वारा। ये द शालीमार वर्क्स, ये जो कंपनी है ये ओन की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, करेक्ट। इसने अभी एक 250 मैन फेरी क्राफ्ट को डेवलप किया जिसका नाम रहेगा मंजूला। ये 7th फेरी क्राफ्ट रहेगी, यार्ड 786, करेक्ट। और इसको इंडियन नेवी को यहाँ पे सौंपा गया, ठीक, मार्क करके चलेंगे इसको। शालीमार वर्क्स की बात करें, जैसे मैंने बताया, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की कंपनी रहेगी। चेयरमैन रहेंगे यहाँ पे अंशुल गुप्ता। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के अंडर 1989 का अमेंडमेंट हुआ जिसमें हमें OBC रिजर्वेशन अभी देखने को मिले। पहले यहाँ पे पंचायती राज में OBC रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू एंड कश्मीर के जो पंचायती राज एक्ट है, मतलब वहाँ पे जो भी पंचायत होती हैं उसमें हमें OBC की रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। एंड जो भी OBCs है वो यहाँ पर अपनी पोजिशन सच एज सरपंच के लिए यहाँ पर फाइट कर सकेंगे। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम OBCs इन जम्मू एंड कश्मीर विल बेनिफिट फ्रॉम द रिजर्वेशन ऑफ पोजीशन सच एज सरपंच। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इन्होंने लॉन्च किया 3rd फेज ऑफ द BSKY हेल्थ स्कीम। BSKY क्या है? बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। तो अभी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 3rd फेज लॉन्च किया है ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। इसके अंडर 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा को कवर किया जाएगा। जो भी 1st फेज और 2nd फेज में बच गए थे लोग, वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे इन द 3rd फेज। एंड उनको BSKY नाबीन कार्ड से यहाँ पे उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, करेक्ट। तो याद रखेंगे BSKY बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना कहाँ की स्कीम है? ओडिशा की। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवरेज स्कीम रहेगी एंड इसका 3rd फेज अभी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं, ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं इनकी क्विक रिवीजन पे। पीयूष गोयल जी के द्वारा भी एक्सटेंड कर दी गई, अनाउंस किया गया फॉर द एक्सटेंशन ऑफ RODTEP स्कीम टू ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स। देन महाराष्ट्र ने टॉप किया अमंग द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। देन यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया NTPS वन नेशन वन पास टू एनेबल सीमलेस ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस इंडिया। DEE ने रिलीज किया इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 एंड यहाँ पे इन्होंने हाइक कर दिया रेट ऑन SSAS and 3-year term deposit. Then new design and test facility was inaugurated and Halls AERDC जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है।
TEC ने लॉन्च किया ऑनलाइन मॉड्यूल्स ऑफ COA एंड टेक्नोलॉजी अप्रूवल अंडर वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम। देन RBI ने एक्सटेंड कर दी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को टिल 2025, कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक, 3 साल के लिए और एक्सटेंड यहाँ पे इन्हें कर दिया गया है। नेक्स्ट RBI ने ये देख लिया हमने, IRDAI की जो एनुअल रिपोर्ट आई कि इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 4.2% से 4.4% रह गया इन 2022-23। देन RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ गुजरात बोटाड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक एंड महाराष्ट्र आदर्श महिला नागारी सहकारी बैंक मर्यादित को। देन CBI एंड किस्तुसु साइसॉन फाइनेंस पार्टनर विद MSME लोन। देन RIL बैंक, ये वो पहली इंडियन कंपनी बन गई टू यूज केमिकल रिसाइकलिंग फॉर दिस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स। देन LIC ने रिड्यूस कर दिया स्टेक इन BHEL टू 9.617%। देन 7th फेरी क्राफ्ट मंजूला की बात करें, यार्ड 786, इसको डिलीवर्ड किया गया टू इंडियन नेवी। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 को अमेंड किया गया एंड OBC रिजर्वेशंस को यहाँ पे लाया गया फॉर सरपंच पोजीशन। देन ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया 3rd फेज ऑफ BSKY हेल्थ स्कीम, जिसके अंडर 90% ऑफ द ओडिशा की पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। हु हैज़ रिसेंटली स्वॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन बने? अनमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, राइट, ऑफ तेलंगाना। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। ये पहले चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के एंड ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। क्यों, किस कैटेगरी में? कि ये कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर जनरली देखें तो ये सेकंड चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना के सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 2014। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं तेलंगाना के? तो वो है अनमुला रेवंत रेड्डी। ठीक, नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिसने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द पार्टनर इंक्यूबेटर फॉर द आईडेक्स इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। तो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर। इनको AII को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द पार्टनर इंक्यूबेटर फॉर आईडेक्स इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये आईडेक्स इनिशिएटिव क्या है? इसके अंडर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है, जो भी प्रोडक्ट डिफेंस से रिलेटेड होंगे वो इंडिया में खुद ही बनाएगी, उसकी प्रोडक्शन इंडिया में ही करेगी, जिससे एक तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा, राइट, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी, एरोस्पेस सेक्टर के भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। एंड जो जॉब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी मार्केट को ग्रो करने के लिए, किसी भी कंट्री को GDP ग्रो करने के लिए, तो इंडिया में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। Next, which of the following abrogated article of the Indian Constitution has given special status to the state of Jammu and Kashmir? तो वो है आर्टिकल 370, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी राइट दे दिया टू एलिमिनेट दिस आर्टिकल 370, करेक्ट। इसको 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया था द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन 5th of August 2019। एंड ये जो आर्टिकल 370 है ये ग्रांट करता है जम्मू एंड कश्मीर को टू मेक देयर ओन लॉज इन द मैटर एक्सेप्ट फाइनेंस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो वो मैटर है वो उनमें डील कर सकते हैं, अपने लॉज बना सकते हैं एक्सेप्ट इन दीज कैटेगरीज। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवेल्ड एडवांस क्रार कॉम्बैट ड्रोन्स आर्म्ड विद एयर टू एयर मिसाइल? तो ये क्रार कॉम्बैट ड्रोन्स किसके हैं? ईरान के रहेंगे, राइट। इनकी रेंज रहेगी 1000 किलोमीटर तक की। इसी के साथ साथ एक थर्मल मिसाइल का भी नाम याद रखेंगे, थर्मल मिसाइल, क्या नाम रहेगा इसका? माजिद, राइट, माजिद नाम की थर्मल मिसाइल रहेगी। 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। इसको भी ईरान के द्वारा ही डेवलप किया गया है, राइट। एंड क्रार कॉम्बैट ड्रोन्स ये भी ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, which company has recently signed 588.68 crore rupees contract with Ministry of Defense to acquire Digital Coast Guard project under Buy Indian category? I repeat, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया 588.68 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्वायर द डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट अंडर बाय इंडियन कैटेगरी? वो है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, राइट। इन्होंने अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट के लिए अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी। एंड ये जो डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट है ये एक इनिशिएटिव रहेगा किस ऑर्गेनाइजेशन का? इंडियन कोस्ट गार्ड का। विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बायनल फ्रॉम 9th to 15th of December एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, राइट। इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया पहला आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बायनल फ्रॉम 9th to 15th of December एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली।
ये जो इवेंट है आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स इनको एक साथ लाएगा ताकि वो अपने डिजाइन्स को, अपने प्रोडक्ट को आगे शोकेस कर सकें, राइट। और इसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक समुन्नति लॉन्च किया गया जो कि एक स्टूडेंट बाइनल है, एंड यहीं पर एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी लॉन्च की गई। DPIIT दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इंप्रूव इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, वो है वर्ल्ड बैंक, राइट। तो याद रखेंगे DPIIT ने वर्ल्ड बैंक के साथ अभी कोलैबोरेट किया ताकि इंप्रूव किया जा सके इंडिया का लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को, राइट। नेक्स्ट, और एक चीज और, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की इनकी क्यों हेल्प कर रहा है, ताकि जो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वहां पर इंडिया की रैंक को एनहेंस किया जा सके, वहां पे बेटर रैंक इंडिया स्कोर सके। बेटर रैंक होगी तो इंडिया के जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो और ग्रो करेगा। नेक्स्ट, REC लिमिटेड हैज साइंड अ डैश लोन अग्रीमेंट विद KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी टू रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया। तो अभी याद रखेंगे REC लिमिटेड ने, इन्होंने 200 मिलियन यूरो का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी के साथ, ताकि जो डिस्कॉम्स हैं इंडिया में, उनको, जो कि डिस्कॉम कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर रिफॉर्म ला सके, राइट। उनको चेंज किया जा सके, नई नई चीज़ें लाई जा सकें, करेक्ट। एंड इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा टू बोथ इंडिया एज वेल एज, और मॉनेटरी जो बेनिफिट है वो तो हम देख रहे हैं KfW डेवलपमेंट बैंक को है, तो इनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा और इनको फिर लोन का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कौन सा एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स हुआ अभी बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, बिटवीन दैट कहाँ पर हुआ, हनोई एंड वियतनाम में इन दिसंबर। तो याद रखेंगे ये आपका कौन सा एडिशन है, ये आपका चौथा एडिशन रहेगा ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स, जो कहाँ पे, इंडिया एंड वियतनाम में हुआ, के बीच में हुआ। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पर हुआ था, हनोई में हुआ था, हनोई वियतनाम में, राइट। 11 से 21 दिसंबर के बीच में ये इवेंट वहाँ पर हुआ। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट नेम्ड नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। ये वीमेंस के लिए लॉन्च किया गया है, 18+ वीमेन होनी चाहिए, जो सेल्फ अर्निंग वीमेंस होती हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है, करेक्ट। किस बैंक के द्वारा, नाम रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स वीमेंस के लिए बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस एरोस्पेस कंपनी ने या स्पेस कंपनी ने भी रिसेंटली लॉन्च किया Zhuk 2 Yao 3, जो कि वर्ल्ड का पहला लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल रहेगा, जिसने 3 सैटेलाइट स्पेस में ले जाई गई। तो वो कौन सी कंपनी है, वो है लैंडस्केप चाइना, राइट। इनके द्वारा ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया Zhuk 2 Yao 3, जो कि वर्ल्ड की पहली लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल रहेगा। इसी के साथ साथ एक और कंपनी का नाम याद रखेंगे, वो है iSpace। iSpace वो कंपनी है जिन्होंने चाइना का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट किया, चाइनाज फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट करा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द UN इंटरनेशनल माउंटेन्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। तो किस व्हेन या फिर पूछा जाए कब ऑब्जर्व किया जाता है UN इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, जिसकी थीम रहेगी रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। तो हम याद रखेंगे 11 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं UN इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, और पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 2003 में। Next, in November, Dash became the first woman to assume the role of commanding officer at the Armed Force Transfusion Center at Delhi Cant. तो वो है कर्नल सुनीता BS, राइट। ये वो पहली वीमेन बनी टू अज्यूम द रोल ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एट द आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर इन दिल्ली कैंट। नेक्स्ट, SBI ने रिपोर्टेड अन -% year-on-year ग्रोथ इन देयर सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट एट 14,330 करोड़ रुपीज। तो SBI ने कितना रिपोर्ट किया ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24, तो 8% का यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर किया विद अ प्रॉफिट ऑफ 14,330 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया परचेज ऑफ 70,000 मोर सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम डैश कंट्री बेस्ड SIG SOR इनकॉर्पोरेशन फॉर द इंडियन आर्मी एट अ कॉस्ट ऑफ 800 करोड़ रुपीज। तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया परचेज ऑफ 70,000 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, जो कि USA बेस्ड कंपनी SIG SOR इनकॉर्पोरेशन के द्वारा था, राइट। ये USA की कंपनी है, इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर किया गया, 800 करोड़ की लागत से प्रोक्योर किया गया। तो राइट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन 5 USA। हु वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज द 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के छठे चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, वो है लाल दुहोमा, करेक्ट। 74 साल के हैं एंड ये लीडर हैं जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के, एंड ये छठे चीफ मिनिस्टर बने हैं मिजोरम के। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, इन द एक्रोनिम सरस मेला। सरस मेला की यहाँ पे आर की फुल फॉर्म पूछा, मुझे पूरे सरस की फुल फॉर्म बताओ।
Next, General Dong Jun, who was recently news, is the defense minister of which country? Third, what is the name of the China's cutting-edge ocean drilling vessel designed to penetrate the Earth's crust and reach the mantle for the first time in human history? Fourth, with which state Praja Palna Guarantee Drakshutta is related to? और पांचवा, which state has consistently ranked first in recording entries on the interoperable क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स. मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.